आपकी आवाज थोड़ी दूर से आ रही थी। तो हाँ हाँ। हाँ, अभी देखो अभी ठीक ठीक है। है। अभी ठीक है। अच्छा। तो आचार्य प्रशांत का एक वीडियो मैंने देखा और उसमें ही इज डिस्कसिंग पेरेंटिंग द सेम थिंग वी वर डिस्कसिंग दैट डे, हम्म। कि वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग। पैसा आ जाने से हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि हम समय नहीं दे रहे हैं, हमारे घरों में संवाद नहीं हो रहे हैं। कॉन्वर्सेशन एज पर जो हम देखो, हम देर आर टू काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन जो अभी हम घरों में कर रहे हैं। वन हम्म। इज जो एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग, राइट। हम्म। कहीं कहीं इंफॉर्मेशन से थोड़ा ज्यादा, राइट। या। जो एक्चुअल, अब जो हम यहाँ बैठ के कॉन्वर्सेशन करते हैं, इस तरह की कॉन्वर्सेशन आप घर में नहीं कर सकते। या आप कोई क्लोज फ्रेंड से बहुत चीजें शेयर करते हो, वो नहीं हो पा रहा है। बिकॉज हर एक का जो अभी, जो अगर हम देखें तो हर इंडिविजुअल का घर में लक्ष्य अलग है। तो वो लक्ष्य को सेम आना, योर गोल हैज टू बी वन। अभी का गोल इज डिफरेंट। वन मीन्स ठीक है, सब लोग अच्छे से रहे, समृद्धि से रहे, पैसा कमाएं, दिस इज द लक्ष्य ना। और बेसिक हैप्पीनेस, जिसको आज की डेट में हम हैप्पीनेस कहते हैं, बस उतना लक्ष्य है। उसके बियॉन्ड का लक्ष्य अभी सोचने में भी नहीं आ रहा। दे कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड। तो वो जब तक वो कॉम्प्रिहेंड नहीं होता, आगे की बात कैसे करूं। तो each and every individual tries to overpower the other with their arguments, because आज जो हमने एजुकेशन लिया उसका आर्ग्यूमेंटेटिव बैकग्राउंड तो है ही ना। What you're saying is right. I think what you're trying to say is कि जो आज के challenges हैं वो they have emerged because of certain other things that didn't go into place. But मुझे लग रहा है कि now we are invited to write this book from the perspective of not what has gone wrong only, but या what is या it that we वो are तो aiming to go towards. That's how I am understanding. once we place where all those points where we are going wrong, so then it is easier to correct it। Hmm. पता तो चले गलती कहाँ हो रही है। समझदारी नहीं है तो गलती है, तो गलतियों का तो इट्स लाइक अ पैंडोरास हाँ बॉक्स, नो हाँ, बॉटमलेस। लेकिन मेरे ध्यान में जो आता है कि घरों में संवाद, जिसको अच्छा संवाद कहते हैं, ये थोड़ा अभी नेतल कैन आंसर दैट। मॉम अभी 6 मंथ्स का अध्ययन करके आई है, तो देयर इज अ शिफ्ट इन हर बिहेवियर एंड थिंग्स लाइक दैट। कैन यू आंसर दैट? आई वुड लाइक टू नो इट फ्रॉम यू। Uh, the meeting is also being recorded. डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। I don't see a very strong, prominent shift in her, but definitely there is a difference. Like, I feel she's being able to be more understanding the way she was. Like, I feel that she was a little more authoritative before, but now I feel she has been quite calm. She is trying to understand the perspectives of us also. Where is it coming from? So ऑलराइट। there is not like a 0 to 100 kind of a shift, but yeah, I can, in her behavior, in her calmness, I can feel that yes, like things have did changed, and I can see the process. I can गुड। see that even the kind of conversations we do have now, I feel they are more qualitative. It's not just about things, talking about people, bragging about them. It's not that anymore. And if ever either of us is going to that direction, generally it used to happen if I recollect. Initially, our talk was like relative ne aisa bola, isne ye kya, all those conversations. That was a huge chunk of our conversations as far as I remember. But now it is like barely any time. And even if it ever goes there, we bring our point, this is waste of time. Rather, we should talk on something which is good, which is fruitful. गुड। So the quality of our conversations have changed a lot. बिग शिफ्ट, बिग शिफ्ट। Yeah. And one thing I feel at the end se jo a prominent shift I feel is the willingness to do. Like initially, I never saw her taking any initiative, writing or doing any of those stuff. Now I see that she's participating actively. She's trying to write. Like she always had this ki itna lamba gap ho gaya, main nahi likh paungi.
But now she हाँ, tries. नहीं She हो पा does रही है। sit. Like I've seen she's writing 2 pages, 3 pages. Then she says, "देख आज मैंने ये लिखा है," like that. अरे वाह, आई एम So नॉट डू दैट, दैट्स वंडरफुल, दैट्स अ हाँ, गुड थिंग। this I feel थोड़ा pressure से भी होता है. Like even I keep on telling her थोड़ा. Sometimes it comes from her. तो इस हाँ, तरह से चलते रहता है. She'll ask me, "What did you wrote today?" So या we were just writing our learnings from Parichay Shivir. So I just wrote a couple of, like I wrote 1 page and she completed writing 3 pages by then. वाओ, So yeah, दैट्स अ I feel this is good. गुड, Mm. वेरी नाइस। That Yeah. is giving me one little motivation that I should also do it. Yeah, I Parichay have Shiv now sir. learned certain ways how to make moms do work. So Good, I good. have actually realized when it comes like a very theoretical stuff, it is difficult to take. एक एज का फैक्टर होता है, काफी लंबा बहुत प्रैक्टिस। मुश्किल होती है, मुझे तो काफी जगह काफी दिक्कत होती है। हाँ, बट जब वो ऐसा हम्म, आता है ना, ठीक है, राइट अबाउट यू, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, तो हम्म, स्मॉल चंक्स में व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, धीरे धीरे यू डेवलप अ कॉन्फिडेंस कि ओके आई रोट, फाइनली व्हेन यू गेट अप हम्म, आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स एंड यू सी चलो मैंने 2-3 पेज लिख लिए, भले ही आफ्टर 10 days यू फील कि यार मैंने ये क्या ही लिखा है, बट हाँ, इवेंचुअली दैट राइटिंग डेवलप्स। नहीं, और वो जो इंग्लिश का जो उन्होंने दिया ना होमवर्क कि आप लिखो एवरी हम्म, डे, वो मैंने हम्म, बहुत थोड़ा सा लिखा है, बिकॉज मेरा लिखना ही तो प्रॉब्लम है। सो इट इज गुड। चलो ठीक है, मैंने कमिंग स्टार्ट बैक करेगा। टू द पॉइंट वेयर वी लेफ्ट लास्ट टाइम, संदीप भैया आप कुछ कंक्लूजन और आज का स्टार्ट अगर रखना चाहे। जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते ठीक भैया। है, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? एकदम बढ़िया। आपका ये डिवाइस और प्लेस एकदम परफेक्ट है भैया, लाइट साउंड दोनों बढ़िया है। ठीक है, जी। धन्यवाद। तो मेरे बीमार लैपटॉप को आपने पसंद नहीं किया और वो घूमने वाले मोबाइल से आप संतुष्ट हैं। ऐसा ही परिवारों में भी देखा जाता है कई बार, है ना? तो, ठीक है। जो होमवर्क था, लास्ट लाइन पिछले सत्र का कि परिवार को लेकर वाङ्मय में कहाँ कहाँ लिखा गया है, कहाँ उसकी हम्म, मेंशनिंग है। हम्म, पहला ये था। दूसरा, फैमिली स्ट्रक्चर को हम्म, लेकर कुछ लिखा जाना चाहिए सबके द्वारा अपने से। और तीसरा, इंट्रोडक्शन जो हम लोग जिस पर हम लोग पूरी बात कर रहे थे उसके स्ट्रक्चर पर भी बात होनी चाहिए। तो इन तीनों पर मैं सोच पाया, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया क्योंकि हर दिन कुछ न कुछ कार्यक्रम हाथ में आ जा रहे हैं। मसलन सुबह की सभा सभा में जब योगेश भैया बोलते हैं तो उसका एक नोट्स बनाना, और कल मैंने पहला प्रयास किया कि उसका जो सबटाइटल आता है यूट्यूब में नीचे, उस सबको कलेक्ट करना। वो टाइम वाइज आता है लेकिन काफ़ी टूटा हुआ होता है। उसको कंपाइल करके, चूंकि मूल्यों की बात चल रही है वहाँ, मुझे लगा कि परिवार ही में मूल्य की बात शुरुआत होती है। और हम्म, संयोग से एक संदर्भ मुझे अभी दिखा है मानव व्यवहार दर्शन के पेज नंबर 79 के थर्ड अनुभूति में कि हम्म, व्यवस्था का आरंभिक स्वरूप परिवार है। हम्म, इसी क्रम में 10 सोपानीय परिवार सभाओं के रूप में पहचान होती है। तो व्यवस्था का जो इनिशियल स्टेज है वहां पर लोगों का आपसी इंटरेक्शन, जिसको मूल्य का निर्वाह कह रहे हैं, उसको लेकर मैंने योगेश भैया जी के इस सत्र का यूज करना चाहा, मतलब यहाँ पर उसका प्लेसमेंट हो जाए। तो मैंने उसकी एडिटिंग करनी शुरू की, लेकिन उस सुबह के 1 घंटे के सत्र को मैं रात तक पूरा नहीं कर पाया। काफी हैवी होता है सुबह का सेशन, तो ठीक है। हाँ, मैं देखता हूँ कि रोज आप खोल ले रही हैं, सुबह जग पा रही हैं, जो कि आपके पुराने अभ्यास में नहीं रहा है ना, ऐसा आपने कहा था। मैं लेकिन अभी कई सत्र में बार जुड़ना हो पा रहा है। एक्चुअली रिकॉर्डिंग सुनती हूँ, कई बार मिस अच्छा, भी कर देती हूँ, बट कोशिश अच्छा, करती हूँ कि सुन लूँ पूरा, तो अच्छा। उतना तो रहता तो है जी। खैर, कम से कम रिकॉर्डिंग हो रही है। और हम्म,
मुझे लगता है हर दिन जितना सेशन चल रहा है उस पर बहुत काम और मैन पावर चाहिए और काम होने की जरूरत है, जिसमें काफी शॉर्टेज मुझे दिखाई दे रहा है। सिंगल एक रिकॉर्डिंग नियमित रूप से हो, ये भी नहीं हो पा रहा है। फिर उस रिकॉर्डिंग का जो है स्क्रिप्ट राइटिंग या बुकलेट जैसा भैया चाहते हैं, और वाकई वो क्लियरिटी आएगी जब इन टेक्स्ट के थ्रू गुजरेंगे। अदरवाइज जो वांग्मय है वो अपने आप में काफी गरिष्ठ है ना, अपने में बहुत कुछ समेटे है लेकिन वो खुलता नहीं है। ये जो वरिष्ठ हैं उनसे ही ये गरिष्ठ खुलता है ऐसा कह सकते हैं। तो आ, उसके लिए लेखन हो गया, तो इसको मैं लिख नहीं पाया, लेकिन मेरा ध्यान गया ये मानवीय संविधान में जो डमरू वाला स्ट्रक्चर है, परिवार और व्यवस्था। इतनी बार परिवार लिखा है उसमें, है ना, कि 10 आदमी से लेकर परिवार जो है, परिवार समूह, ग्राम समूह, और परिवार ही बड़ा हो रहा है, परिवार कम नहीं हो रहा है, परिवार ही है वो, है ना। तो जब हम परिवार बोलते हैं तो जो आम अभ्यास है हमारा कि हमारे घर में जो 3-4 लोग हैं बस उसके चेहरे, ऐसा नहीं है। परिवार जब हम बोलते हैं तो परिवार में जो 10 सोपानी व्यवस्था है वो पूरा आकर के ठहर जाना, और हमारा इस सामने वाले के साथ व्यवहार भी उसी आलोक में, उसी कंटेक्स्ट में, तभी वो मूल्य वाली बात आती, नहीं तो संवेदनाएं ही जो है टकराती। बिल्कुल। तो ये पूरे वांग्मय से जो स्थिर होना है और जो परिवार में उसका प्रमाण आना है, वो हमारे, एक तो कहते हैं अवधारणा में पूरी होना, कम से कम अभी शब्दों से जो विश्लेषित होके चित्र बन रहे हैं, चित्रण में आ रहा है, वो स्थिर होता है तो परिवार से बात शुरू होती। अब तो उसमें जो परिवार हर बार लिखा है, परिवार और व्यवस्था, परिवार 2 रूपों में है। जब अखंडता की बात करते हैं तो उसमें परिवार परिवार लिखा हुआ है उस चित्र में, और जो सभा लिखी है, परिवार पहली सभा है जहाँ सहमतियां होती है, तो व्यवस्था जहाँ, फिर व्यवस्था व्यवस्था लिखा हुआ है, यानी उस सहमतियों का बड़ा होता जाना सभा रूप में। तो परिवार दोनों चीज के लिए पहली जगह है। मैं फिर से व्यवहार दर्शन की इस बात को ध्यान में लाता हूं कि व्यवस्था का आरंभिक स्वरूप परिवार है, जो कि सभा से शुरू होता है, और अखंडता का पहली जगह परिवार है, जहां परस्पर मूल्य निर्वाह से ये बात शुरू होती है। तो मैं इसी चीज को सोचता रहा 2-3 दिन और लिख कुछ नहीं पाया, है ना है ना। लेकिन मुझे ये जितनी बार सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि साइकोलॉजी को लेकर जितनी बात हम लोग कर रहे हैं, और बाबा जी ने जो विकल्प के रूप में कहा है कि ये विकल्प है, ये पिछले सभी कामों को एक तरफ रखें, इसको एक तरफ रखें, ऐसा करके जोड़ करके देखने से क्या होगा कि हम उसी में मॉडिफिकेशन चाहने लगते हैं। इसको फ्रेशली कैसे पहले तो खुद में स्थिर होना कि ये बिल्कुल अलग वस्तु है और यहाँ से समूचा स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, इसमें जीने की शैली, ये जो व्यवसायिक मानसिकता से शहर बने, है ना। साधन भैया की बातों को याद करें तो वो कहते हैं औद्योगिक क्रांति हुई, कारखाने बने, जब प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई किया गया तो कारखानों के बाहर कस्बे बने और धीरे धीरे शहर बन गया, जहां पर जो है सभी तरह के साधन चाहिए और गाँव से आएंगे, आपका दूध आएगा गाँव से, आपकी सब्जी आएगी गाँव से, आपका दरबान, आपके काम करने वाले सभी गाँव से आएंगे, सारे रिसोर्सेज, और आप वहां पर उसका पैसा में कन्वर्ट करेंगे और सबका श्रम को जो है आप पैसे के रूप में लॉकर में बंद रखेंगे। तो ये जो शहरी मानसिकता 150 साल में विकसित हुई है ना, ये पूरी तरह अभी अब ये कॉर्पोरेट नाम से जाना जा रहा है, शेयर मार्केट के नाम से विनिमय बदल गया है, डिजिटल मोनेटाइजेशन हो गया है। तो ये सब विकृत स्वरूप 200 साल का है। ये अलग बात है कि पहले भी जागृति नहीं थी, लेकिन जो तकनीकी विकास नहीं था उससे कुछ संभला हुआ था। अब इसको विकल्प रूप में नहीं देखेंगे तो हम उसी में मॉडिफिकेशन चाहते रहे। तो यदि हमारे परिचय में, परिवार मनोविज्ञान के परिचय में इस विकल्प चीज को लेकर के एकदम सटीकता से बात रखी जाने की आवश्यकता है ना, जिससे कि लोग
एकदम डिस्टिंक्ट कर सकें कि ये बात कुछ अलग कही जा रही है, और यहाँ से हम आने वाली धरती की, मतलब आने वाली जनरेशन्स के लिए बात नींव रखी जानी है। ऐसा करके परिवार मनोविज्ञान का जो है प्रीफेस लिखा जाना चाहिए। मुझे लगता है ये चीजें मेरे मन में घूम रही थी, मैंने जितना संभव हुआ रख दिया, है ना। तो सभी लोग चूंकि दर्शन से जुड़े हैं और लंबे समय से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो कुछ ऐसा लिखित रूप में आए और ऐसा मतलब कि जबरदस्त इंट्रोडक्शन बने जो आदमी पढ़ने के बाद फिर उसको विकल्प के नजरिए से, चश्मे से देखे। इतनी बात मैं कहना चाहता था। आप लोगों की जो जो सहज मतलब संवाद थे उसमें अचानक से ये काफी कड़े चीजें आ गई, ऐसा लगता है। फिर से हम नहीं लोग नहीं, ये इम्पोर्टेंट भी है भैया, बिना इसके हो नहीं पाता, मतलब दोनों का बैलेंस चाहिए। जी। ठीक है। आप बहुत अच्छी स्टडी कर रहे हो, आपसे प्रेरणा लेनी पड़ती। अरे ऐसा नहीं, सभी लोग एक दूसरे के पूरक हैं। अखिलेश भैया बहुत गहराई से सोचते हैं, तो भैया जी से फिर हम आग्रह करेंगे कि क्या इन बिल्कुल बातों बिल्कुल पर। बिल्कुल भैया, जरूर। मैंने भी इस पर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं सोचा, थोड़ा सा ध्यान दे रही थी। मेरी कोशिश ऐसे रहती है कि मैं देखूं कि अगर मैं वो किताब पढ़ रही हूँ तो मैं उसको कैसे, मैं क्या उसमें मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि मैं कोई चीज़ नहीं उठा के क्यों पढूं। तो मेरा भी वही विचार रहा जैसे आपने बोला संदीप भैया, कि इसको विकल्प की तरह रखने का, ये इंट्रोडक्शन में अगर आ जाए कि, तो ऐसा मैंने सीक्वेंस देखा तो, कि पहले तो ये हो कि ये किताब, ये हम क्यों लिखने जा रहे हैं, तो ये एक ओवरव्यू भी है कि एक परिवार को देखा कैसा जाए। इट इज़ अबाउट अ पर्सपेक्टिव। तो ये जो नया पर्सपेक्टिव है, हम इसका ओवरव्यू भी देने जा रहे हैं और इसकी नुआंसेस भी देने जा रहे हैं इन द लाइट ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन, कि हम जहाँ खड़े हैं और जो हम ये पर्सपेक्टिव दे रहे हैं उसमें भी एक ब्रिज की तरह हो। मुझे लगा ये भी अगर बात रखी जाए तो एक ओवरव्यू जैसा लगता है कि अच्छा, हम इस किताब से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस करिकुलम से। दूसरी बात यह है जो आपने बोली कि इसका हम ये क्यों कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमको कि हम दूसरी तरह से देखें, ये ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी। तो अगर इसको भी हाईलाइट करा जाए तो, एंड ऑल्सो इससे हम क्या फुलफिल करने की सोच रहे हैं, हम लोग क्या होप कर रहे हैं कि बाद में हो जाएगा। ये तीन चीज़ें मुझे लगा कि अगर हम इसको फिर थोड़ा थोड़ा इसकी डिटेलिंग कर दें इन डिफरेंट एरियाज, तो मुझे लगा एक कंसाइज इंट्रोडक्शन बन सकता है। अब ले इसकी डिटेलिंग क्या हो, दिस वी नीड टू गो इनटू। जो आपने कल पॉइंट्स सब प्रपोज किए थे अबाउट कपल रिलेशनशिप, फैमिली एंड पेरेंटिंग, जो तीन एस्पेक्ट्स कल इसमें उठाए थे, आई एम आस्किंग माई सेल्फ कि कुछ और भी हो सकता है क्या। वो मुझे ऐसे लग रहा है हो सकता है, लेकिन छू नहीं पा रही हूँ, तो शायद थोड़ा और सोचने की ज़रूरत है। बट आई थॉट आई विल शेयर दिस। जी दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगा कि क्यों और कैसे, क्या क्यों कैसे, तो क्या है विकल्प है, क्यों है त्रस्त हैं अभी की समस्याओं से, और कैसे होगा उसके लिए जो वाङ्मय के मुख्य बातें हैं, है ना, 10 सोपानीय व्यवस्था या अखंड समाज व्यवहारिकता आदि, वो तीनों, तो इन तीन हेडिंग को ध्यान में रख के क्या क्यों कैसे को हम इंट्रोडक्शन को सजा सकते हैं। उसके लिए जो उपयुक्त भाषा और ब्रिजिंग की बात है, ब्रिजिंग तो है ही, है ना। ये तीनों बातें अपने आप में आदमी को सोचने के लिए, पढ़ने के लिए आगे पुश करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। जी दीदी। यहाँ से आगे क्या कदम उठाया जाए, वहां पर मेरा एकदम ब्लैंक सा हो रहा है। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। हाँ, तो क्या हम इसमें इसकी ना व्हाट तरकीब, आई
मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, it's coming. परफेक्ट। तो मुझे एक चीज अभी ये लग रही है कि अभी जितना हमने कॉन्सेप्ट नोट का स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज ओके। अभी हम लोग ना इसको फिलहाल के लिए वी कैन टेक अ पॉज विद इट, क्योंकि एक स्ट्रक्चर अभी हमें समझ में आ रहा है कि हमें काम किस डायरेक्शन में करना है। हमारा कॉन्सेप्ट नोट इवेंचुअली आगे काम करते करते और इलोबरेट और डिफाइन हो पाएगा। तो आई पर्सनली फील कि अभी हम लोग जैसे पहला हमारा टॉपिक अब आएगा, नेक्स्ट विल बी इंट्रोडक्शन। मतलब जब भी हम कुछ भी कंटेंट पढ़ते हैं लिखते हैं तो सबसे पहला पार्ट उसमें इंट्रोडक्शन का आता है। तो आई फील कि हम लोग नेक्स्ट जो काम करें इसमें हम लोग सबसे पहले हम परिवार के बारे में थोड़ा सा सोच ले। और इसमें जैसे मैंने ना कुछ रेफरेंसेस जो मुझे मिले थे वो शेयर किए थे। एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था जिसमें विवाह के बारे में काफी सारे बिंदु है। ये जो एक विवाह का डॉक्यूमेंट शेयर किया था, ये फाल्गुनी मासी, चेतना मासी, इन्होंने अ, इस कंपाइलेशन को किया है। तो इसमें दर्शन में जहाँ पे भी विवाह के बारे में चर्चा है ना, उन्होंने उसको पूरा एक जगह किया हुआ है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आप लोग उस डॉक्यूमेंट को देख लें। तो मुझे लगता है इस तरह का हम एक डॉक्यूमेंट परिवार का बना सकते हैं दर्शन को लेके। और साथ ही साथ में इंडियन पर्सपेक्टिव और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में फैमिली को कैसे समझा गया, इसको हम लोग एक बार कर ले, ऐसा मेरा प्रस्ताव है। इस पे आप लोगों के क्या व्यूज है वो एक बार आप लोग बताइए, फिर हम लोग आगे का थोड़ा और स्पेसिफिक प्लान कर सकते हैं। मैं बीच में कट गया था, यदि संक्षेप में ये बता दें एक बार फिर से क्या पूछ रही हैं। हाँ भैया, मैं ये बोल रही थी कि मैंने ग्रुप में एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है विवाह को लेके, जो कि फाल्गुनी मासी और चेतना मासी और आत्मीय के और एक दो फैकल्टीज ने मिलके डेवलप किया है। तो इसमें सारे विवाह को लेके दर्शन में जहाँ भी जो भी बातें बोली गई है ना अलग अलग पुस्तकों में, उसको उन्होंने काफी अच्छे से कंपाइल किया है। तो मुझे लगता है एक हम लोगों का कमिंग डेज में ये एक टास्क हो सकता है कि हम इसी तरह परिवार को लेके जहाँ भी जो चीजें बताई गई हो उसका एक कंपाइलेशन करें। एक चीज ये लगती है, हाँ, ताकि हम ऐसा अपने मैं सब्जेक्ट पिछली का बार जो ही सोच फर्स्ट रहा था। चैप्टर का पहला, हाँ हाँ, तो जो हमारा पहला चैप्टर का जो यूनिट होगा वो इंट्रोडक्शन टू फैमिली साइकोलॉजी होगा। तो इसमें हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में फैमिली साइकोलॉजी को कैसे देखा, इंडियन में कहाँ कहाँ उसके हिंट्स मिलते हैं, इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग सब लिख लेंगे। तो इसमें ये रख सकते हैं कि हम इसको बहुत अभी इस तरह नहीं बांधते कि कौन वेस्टर्न करेगा, कौन ईस्टर्न करेगा और कौन दक्षिण के आया। मुझे लगता है जो जिस फील्ड में करना चाहे, जो तीनों पढ़ना चाहे वो तीनों को पढ़े। मुझे याद है लास्ट टाइम की मीटिंग में अजय काका बोल रहे थे कि उन्होंने थोड़ा वेस्टर्न का पढ़ा है, तो शायद वो उसका प्रेजेंटेशन रख सकते हैं अगली मीटिंग में। हमने से जो दर्शन का पढ़े वो उसका रख ले, और परिवार को लिखित रूप में विगत तरह से इंडियन पर्सपेक्टिव में पहले कहाँ पहचाना गया, कहाँ उसका वर्णन मिलता है वेद में, उपनिषद में, उसको थोड़ा ढूंढ के, मुझे लगता है शायद मनुस्मृति में और उधर है परिवार को लेके थोड़ी चर्चा। तो इसको हम लोग कर सकते हैं ताकि हमारा फाइनली हम सब्जेक्ट राइटिंग की तरफ बढ़ पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले तो हमें परिवार की कोई बहुत अच्छे से डिफाइन करना होगा, क्योंकि मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन यही आता है कि बाबा जी परिवार को एक अलग नजरिए से देख रहे हैं, उसकी एक अलग इम्पोर्टेंस सिंबलाइज कर रहे हैं या उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वो हम लोग कम्युनिकेट कर पाए, तो ऐसा मुझे लग रहा है इसमें। और इस तरह से हम जो अगर परिवार, तो ये हमें आगे भी हर जगह रेफरेंस के रूप में काम आएगा। तो ऐसा मुझे लग रहा है। इसमें अगर और किसी का कुछ सुझाव हो तो स्वागत है।
मेरी ये एक किसी के पर्सनल साथ में एक रिक्वेस्ट, डॉक्यूमेंट शेयर किया था विवाह के नाम से, तो ये जो है ये प्रज्ञा जोशी नाम की राइटर है। इनका वेस्ट ईस्टर्न पर्सपेक्टिव में काफी राइटिंग्स है। ये जो है जो विवाह का एक मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया, ये मुझे ना आठवीं यूनिवर्सिटी में मेरा जब जाना हुआ था, तो शीतल मासी ने एक बुक में का ये एक बिट है, तो ये उन्होंने शेयर किया था। तो इस तरह से हम मैं भी कुछ एस्पेक्ट से फैमिली साइकिल हेल्प एज रेफरेंस फॉर अस टू रीड होता है, इसको हम फिर अगली मीटिंग्स में शेयर कर सकते हैं। नेतल, आई थिंक बीच बीच में आपकी आवाज टूट रही थी। वर यू ट्राइंग टू से कि यूल कीप पोस्टिंग थिंग्स ऑन द ग्रुप? क्योंकि विवाह यस वाला तो देख लिया मैंने, आई लेकिन सेड जो आई आप विल ट्राई टू। हाँ हाँ, तो इस तरह क्या शेयर मोर डॉक्यूमेंट्स विच विल वी कैन यूज एज रेफरेंस मटेरियल। ओके, मतलब आप लोगों को भी कुछ मिलता है तो यू ऑल्सो शेयर इन द ग्रुप सो दैट वी ऑल गेट सम गुड कलेक्टिव मटेरियल। ठीक है। आई थिंक दैट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। इट वुड बी नाइस अगर आपको कुछ बहुत एक ओवरव्यू की तरह अगर आपको दिख रहा है कि कौन कौन से हेड्स होंगे, तो व्हेन दैट पिक्चर इज देयर नो इन आवर माइंड, तो फिर काफ़ी चीज़ें और भी जुड़ती जाती हैं, इन केस यू हैव थॉट ऑफ इट। और आर वी गेटिंग इन टू इट, अभी ये ठीक लग रहा है तो इसलिए ये स्टेप लेते हैं। हाउ इज इट गोइंग, इन विच डायरेक्शन, और इन विच नो व्हाट इट इज नहीं, आपकी आवाज टूट के आ रही है। क्या सिर्फ मुझे ही गलत सुनाई दे रहा है कि टूटा टूटा, कि सबको सुनाई ऐसा दे रहा है? इज इट माई नेटवर्क और? मुझे भी कट की आवाज आ रही है, प्रॉपर नहीं आ हाँ, रही है। नेतल आपकी आवाज कट कट के आ रही है, तो समझ नहीं आया आप क्या बोले। अब ठीक है क्या? हाँ, अभी ठीक लग रहा है। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि जब हम लोग लिखेंगे ना, तो हमारा अभी ये जो राइटिंग का पार्ट है, बुक का राइटिंग, दिस विल बी फर्स्ट पार्ट ऑफ इट इज इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। तो ये दिस इज लाइक नॉट इन अ रैंडम वे, इन अ प्लान्ड वे इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस ऑल कि हम इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी को पढ़ ले और समझ ले। बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग सब सारे एस्पेक्ट्स पढ़े, तो इसीलिए वी कैन डिवाइड द पार्ट्स ऑफ रीडिंग। जैसे अगर कोई दर्शन पढ़ लेता है, कोई वेस्टर्न पर्सपेक्टिव पढ़ लेता है, तो हमें सबको सब चीज का आइडिया आ जाएगा, बट आई विल नॉट हैव टू रीड एवरीथिंग। तो दिस विल हेल्प इन लाइक ग्रुप स्टडी जैसा ये एक हमारा पैटर्न हो जाए। सो ये अभी हम तय कर लेंगे, शुड वी डू दैट? और एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर मुझे बहुत दिक्कत होती है टू सर्च फॉर द राइट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, बिकॉज दैट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और मेरे काफ़ी कमिटमेंट्स हैं। अगर किसी से डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं पढ़ने वाले, तो वन कैन मेक एन एफर्ट, और चाहे वो छोटा सा ही कर पाए, लेकिन इट वुड बी नाइस। यस, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू। मेरे पास जितना भी है वो मैं विद इन अ डे और टू मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ। टुडे एंड टुमारो आई विल शेयर। ठीक है। और किसी के पास अगर और कुछ मटेरियल है तो दे कैन इवन रेफर दैट मटेरियल। जैसे मुझे लगता है संदीप भैया दर्शन का पार्ट काफी अच्छे से कवर कर जी पाएंगे। हाँ, जी हाँ, मैं और कहने वाला हाँ, रेनू मासी आई पर्सनली फील कि वो थोड़ा वेस्टर्न पर्सपेक्टिव वुड बी बेटर अगर वो कर ले। और अखिलेश भैया जैसे गीता एज इट इज पढ़ रहे थे, ऐसा मुझे उन्होंने एक बार बताया था, तो उसमें से अगर उनको परिवार के कुछ बिंदु मिलते हैं तो वो उसको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो इन अ वे हम लोग इस तरह से थोड़े डिवाइड करके काम कर ले, ऐसा ना हो कि एक ही चीज सब पढ़ रहे और दूसरा किसी का ही पढ़ना ना हुआ हो।
ठीक है, आई थिंक दिस इज अ गुड फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड. And in this, I don't want to force any kind of reading. बढ़िया मंगेशकर का भी बोल रहे हैं कि वो इंडियन पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे. मतलब मैं ये नहीं चाहती कि मेरे तरफ से दबाव पूर्वक आए कि मुझे ये पढ़ना पड़ रहा है. विलिंगली आप लोग जिस सेक्टर पे कंफर्टेबल है आप वो पेपर. Is it all right because any perspective is so wide कि वो पूरे तो नहीं समझा पकड़ा जा सकता, लेकिन वेस्टर्न में अगर कोई किसी के द्वारा एक चीज बोली गई है, सिर्फ उसी पॉइंट को रख दिया जाए, बिकॉज अदरवाइज इट्स ह्यूज. आई फील ओवरवेल्म, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, ऐसा लगता है. इसमें हमें काफी बहुत ज्यादा इट इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल कि हम सब कुछ पढ़े. जैसे अगर हम फैमिली साइकोलॉजी, अगर मैं सोचूं ना मैं सारा फैमिली साइकोलॉजी पढ़ लूं, आई नीड 2-3 लाइफ टाइम्स फॉर दैट. करेक्ट. यस. अभी तक लोगों ने इतना कुछ लिखा है. बट हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिक चीजें पढ़ेंगे और उसका रेफरेंस साथ में कोट करते जाएंगे. जैसे अगर संदीप भैया दर्शन का कोई पॉइंट ला रहे तो जैसे अभी उन्होंने पॉइंट आउट किया विद पेज नंबर एंड बुक, ये ए नागराज जी का ये सोर्स है. कोई गीता से कुछ ले रहा है तो वो सोर्स के साथ मेंशन करे. अगर हम लोग अभी रैंडमली बहुत सारा ले आएंगे विदाउट सोर्स तो लेटर ऑन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये कहाँ से आए. तो बट बिब्लियोग्राफी चाहिए साथ में. हाँ, स्पेसिफिक अगर 4-5 ही हो बट विद सोर्स हो, वी कैन फाइंड अ सिमिलैरिटी कि हाँ 4 लोगों का पढ़ के ये तो सेंस बनता है कि वेस्टर्न में इस तरह की बात हो रही या कुछ प्रोग्रेसिव चेंज दिख रहा है. We can come to a summary by reading 3-4 people. We need not read hundreds of people who have written or done work so far. ऐसा Yeah. मुझे लग रहा है. ठीक है. इसमें संदीप भैया, अखिलेश भैया, शालिनी मासी, आप लोगों का कुछ फीडबैक हो तो बताइए. और हम मैं इससे सहमत थोड़ा हूँ। आराम से स्पीड में बहुत नहीं करेंगे, जैसे हो पाता है. बस इतना बने कि हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, छूट ना जाए. तो मैं अपनी तरफ से कह सकता हूँ कि ये प्रस्ताव मुझे अच्छा लग रहा है. अब बांट करके इंडियन, वेस्टर्न और वांग्मय के पर्सपेक्टिव से परिवार को फोकस में रखे, कंटेक्स्ट के साथ अपनी बात रखें और उसको डॉक्यूमेंट मत के फॉर्म में रखें. एक ये बात मुझे काफी जच रही है. और दीदी जैसा पूछ रही थी कि इंट्रोडक्शन के बाद क्या, तो आपने अच्छे से इसको बता ही दिया कि इंट्रोडक्शन साथ में होता रहेगा. और इसके साथ ही जो ये पढ़ने वाली और रखने वाली बात है, इससे हम कंटेंट की तरफ बढ़ जा रहे हैं. तो ये मुझे अच्छा लग रहा है. और मैं वांग्मय के हर पुस्तक से बारी बारी से कंटेक्स्ट को ढूंढ करके उसको मैं डॉक्यूमेंट और रेफरेंस के साथ प्रेजेंट करने की जिम्मेदारी महसूस करता हूँ, और ये मैं खुशहाली पूर्वक करता हूँ. तो मेरा एक सवाल यहाँ था, आई एम मोर ऑफ अ विजुअल पर्सन. इज इट ओके कि मैं विजुअली प्रेजेंट करूँ कुछ एक्सटेंट तक, कि वो मुझे शब्दों में ही करना है? दोनों ठीक है मासी, एज यू आर कंफर्टेबल. हमें बस आपसे इंफॉर्मेशन मिल जाए, दैट इज इनफ फॉर अस. ठीक है, एंड आई ट्राई बोथ योर अटेम्प्ट. कंफर्टेबिलिटी. ठीक है. सभी को नमस्कार. आवाज आवाज पहुंच रही है? सभी को नमस्ते. जी भैया, तो जैसा आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत देर से बातें सुन रहा हूँ सबकी. तो जितना मैं आप सबकी बातें सुनकर समझ पाया, तो ये सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग डिवाइड कर लें, क्योंकि सबके लिए सब कुछ पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है, और एक एस्पेक्ट को भी पूरा पढ़ पाएंगे ये भी कितना हो पाएगा, ये देखने वाली बात है. तो एक बात तो ये ध्यान में है. दूसरी बात, एक संदीप भैया ने रखा था कि 3 प्रश्नों पर क्यों, क्या, क्यों और कैसे. तो फर्स्ट जब इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या इम्पोर्टेंट है. तो इसमें फैमिली क्या है, डेफिनेशन ऑफ फैमिली इन इंडियन पर्सपेक्टिव, डेफिनेशन ऑफ फैमिली इन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, एंड डेफिनेशन ऑफ फैमिली फ्रॉम एमडी, मध्यस्थ दर्शन. तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि इसको ऐसा भी हम कर सकते हैं कि पहले केवल क्या पर काम कर लें, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं. एक डिवीजन ये हो सकता है कि पर्सपेक्टिव वाइज डिवीजन है, उस पर्सपेक्टिव वाइज डिवीजन में एक सब डिवीजन हो सकता है कि एक व्यक्ति क्या पे, कुछ लोग क्या पे काम करें
कुछ क्यों पर काम करें और कुछ कैसे पर काम करें। तो एक सब डिवीजन ऐसा होने से वो थोड़ा सा और वर्क डिवीजन हो जाएगा और थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ऐसा मेरा ध्यान जा रहा है। बाकी देखिए, नमस्कार। अ, अखिलेश भैया, मुझे फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अभी ना हम थोड़ा शुरू करते हैं। अगर बहुत स्ट्रक्चर्स में तुरंत अगर डाल देंगे तो बहुत समझ में नहीं आएगा, और शायद अभी उतना रीडिंग हम लोग का हुआ नहीं है कि हम उसको प्रॉपर डिवाइड कर पाए। तो इनिशियली हम लोग कंटेंट लेके आते हैं और उसको फिर आगे जो जैसे आप बोल रहे हैं ना, क्या क्यों कैसे में पुट करना, ये प्रस्ताव अच्छा है। इसको हम फिर साथ में कर लेंगे कि इसमें से क्या चीज क्या में जाएगी, क्या चीज क्यों में फिट हो रही है। ये हम लोग ग्रुप में कर लेते हैं थोड़ा लेटर स्टेज पर, क्योंकि अभी सब लोग इतना नहीं किसी मतलब हो किसी भी पाएगा। वर्क का जो फाइनलाइजेशन होगा, हाँ किसी भी काम का, वो फाइनली ग्रुप वर्क होगा। जी जी। राइटिंग हम इंडिविजुअली कुछ कर रहे हैं, रीडिंग हम इंडिविजुअली कुछ कर रहे हैं, पर जब वो इकट्ठा होगा तो उसको फाइनलाइज जब करेंगे तो वो पूरे ग्रुप में करेंगे। जैसे हम ट्रांसलेशन वर्क कर रहे हैं, तो हम्म। ट्रांसलेशन वर्क मैं कर रहा हूँ या संदीप भैया कर रहे हैं या दोनों मिलके कर रहे हैं, लेकिन उसका फाइनल स्ट्रक्चर हम पूरे ग्रुप में तैयार कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल उसी तरह तो से भैया। जी, हाँ, तो एक बार हम शुरू करते हैं और फिर उसके बाद इसको और रिफाइन करेंगे। तो मुझे फिर संदीप भैया ऐसा लग रहा है कि आज के लिए हम लोग, अगर सबको ठीक लगे तो यहाँ पर रुक सकते हैं, और रेफरेंसेस वगैरह हम ग्रुप में शेयर करते हैं, और अगली मीटिंग में कोशिश करते हैं कि थोड़ा प्रिपेयर करके आए और जितनी जिसकी तैयारी होती है उसको सब प्रस्तुत करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक ओवरऑल एक डिवीजन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करके फिर मीटिंग खत्म करें तो कैसा रहेगा? मतलब एक आई प्लान सा आ जाए कि कौन इंडियन पर्सपेक्टिव पे कौन कौन, और ऐसे करके डिवाइड कर लें। उसके बाद मीटिंग का एक रिजल्ट मुझे लगता है कि होना चाहिए कुछ। जी भैया, मैंने कह दिया वाङ्मय से मैं किसी एक पुस्तक से मानव व्यवहार दर्शन या कर्म दर्शन के सारे कंटेक्स्ट को परिवार के से जो जुड़ा है उसको मैं लेकर के अगली मीटिंग में आऊँगा। मुझे एक अच्छी पंक्ति यहाँ पे कर्म दर्शन से दिख रही है। मानव को जीवन की प्रत्येक स्थिति में शांति एवं स्थिरता की आवश्यकता है। सदशास्त्र सेवन, यानी ये जो पुस्तक है, मनन एवं आचरण से व्यक्ति तथा परिवार में शांति तथा स्थिरता पाई जाती है। तो परिवार को लेकर जो ये शांति और स्थिरता की आवश्यकता पूरी होती है परिवार में दिखती है, काफी अच्छी लगी। दर्शन में तो तरह ये से सबसे मजबूत लाइन है कि परिवार व्यवस्था की इकाई है ना। तो यहाँ से तो और दर्शन का मटेरियल अवेलेबल है वर्तमान में, क्योंकि उसी को समझ रहे हैं, उसी को पढ़ रहे हैं। अब वो मटेरियल जो हमें बहुत टच नहीं करता है, जिसको हमने पढ़ा भी नहीं है बहुत गहराई से, हमें उसको पढ़ना है, तो वो थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट टास्क लग रहा है, क्योंकि एक्चुअली वो मटेरियल है जिसको हम केवल राइटिंग पर्पस से पढ़ रहे हैं, लाइफ में उतारने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। दर्शन जो है स्टडी कर रहे हैं, उसको जीने के लिए स्टडी कर रहे हैं, और वो उसका सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो यहाँ ये डिफरेंस आएगा आपके काम में और हम लोगों के काम में। हमें सिर्फ रेफरेंसेस खोजने हैं, यहाँ मेंशन करने के लिए उसको पढ़ के अपनी लाइफ चेंज नहीं करनी है ना। तो ये फर्क रहेगा। आप अगर आप मैं तो आपका असिस्टेंट हूँ और असिस्टेंट के रूप में ही इस ग्रुप में अरे हूँ। भैया ऐसा नहीं बोलिए, हर जीवन स्वतंत्र है। और मैं ये कह तो रहा हूँ जो कि आप सभी लोग पढ़ेंगे और सबसे शेयरिंग सबकी हो जाने से एक कॉमन धरातल बनता है। जी भैया। जो आप करेंगे मैं आपको उसमें सहयोगी के रूप में दिखाई दूंगा। तो अगर दो दो तीन तीन के ग्रुप भी बनते हैं तो मैं आपके साथ आपके उसमें सहयोगी के रूप में रहूंगा। नहीं जी ठीक भैया। है भैया, ये आपका बड़प्पन है। मुझसे बेहतर भाषा और आपकी गहराई है सोचने की, ऐसा मैं पाता हूँ।
लेकिन वाङ्मय में ही सबको अल्टीमेटली समाधान तलाशना है। ये जो इंडियन और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव की बात जब शुरू से चली है, उसमें हम पहले किए गए काम को का पूरा एहसास ले सकें, उस अर्थ में है। जितना मैंने वर्कशॉप्स अटेंड किए और योगेश भैया जी के प्रबोधनों को सुना, उससे ये लगा कि हम कई बार वांग में आ गया तो हम सबको इग्नोर करने लगते हैं, उसकी अहमियत को जो है कमतर जांचते हैं, जबकि अधिकांश जो है काम हुए हैं। ये सारे शब्द ऐसे नहीं आ गए। यदि किसी ने आत्मा शब्द कहा तो उसके पीछे उस काफी परंपरा चली, उस पर विचार हुए हैं, उसको महसूस किया गया है। तो इवन जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की बात आई थी, मुझे टास्क दिया गया था इस बार वर्कशॉप 5 में कि संविधान पर प्रस्तुति लेके आए, और हम लोग लेके भी आए थे। आशीष भाई ने उसकी पूरी प्रेजेंटेशन तैयार की थी, है ना। लेकिन समय सिकुड़ गया और भैया मतलब याद भी नहीं दिलाया गया। हमने जबरदस्ती देखा कि कहाँ पे घुस सकते हैं, तो कहीं मौका नहीं मिला उसको रखने का। तो कहे कि संविधान पे इतना काम हुआ है और एक मानवीय संविधान हमारे हाथ में, हम जैसे मानवीय संविधान हाथ में लेते हैं तो बाकी संविधान भूल जाते हैं। जबकि आज भी हम खा पी रहे हैं, पहन ओढ़ घूम फिर रहे हैं, तो वो अभी जो संविधान चल रहा है उसी के तहत कर रहे हैं। और यहाँ तक पहुंचने के लिए कितनी कुर्बानियां और कितने प्रयास मानव जाति ने किए हैं। तो ये जो वेस्टर्न और इंडियन पर्सपेक्टिव पढ़े जाने के पीछे जो ये पूरे प्रयास आते हैं, तो कृतज्ञता आती है। और फिर बाबा जी क्या कर रहे हैं उसका भी महत्व हम तभी समझ पाते हैं जब हम पीछे का अध्ययन थोड़ा कर पाते हैं। बेशक हम उसको पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जो छाया आएगी उससे हमारी दर्शन को पढ़ने में गहराई बनेगी। तो इस अर्थ में ये पर्सपेक्टिव्स जो है अहमियत रखते हैं। और जब यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे कॉमन प्लेटफॉर्म है, तो सबके शेयरिंग से सबकी नॉलेज एक तरह से एक लेवल पे आने वाली है ना। और यही हम चाहते हैं कि ज्ञान जो है वो वचनीय भी है और ज्ञान निश्चित है। ये दो महत्वपूर्ण बात जो है हमें वाङ्मय से मिली। तो ऐसे में कम ज्यादा की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है भैया। मैं आपकी बात पर अपनी बात कह रहा था। बाकी आज की चर्चा जैसा नेतल बेटा जी ने कहा, हम लोग यहाँ कंक्लूड करना चाहें, अगर कोई किसी के पास कोई बात शेयर करने के लिए ना हो। हाँ, आई एम जस्ट रीटरेटिंग। नेतल, आपने सजेस्ट किया था, संदीप भैया ने बोला कि विद्या दर्शन में संबंधित जितना भी जहाँ होगा परिवार का करेंगे। अखिलेश भैया गीता को लेकर के, और मैंने बोला मैं वेस्टर्न को लेकर के, मंगेश भैया इंडियन पर्सपेक्टिव को लेकर के, और शालिनी दीदी आपका कैसे, ये एम आई सेइंग इट राइट, दिस व्हाट यू हैड हाँ, प्रपोज्ड? ये इतना तो सही है। मैं भी कोशिश करूंगी कि दर्शन का और वेस्टर्न दोनों थोड़ा थोड़ा कर पाऊँ। नेतल, मुझे एक बात थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। जैसे वो विवाह वाला आपने आर्टिकल भेजा और मैंने पढ़ा उसको, तो एक 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 ऐसा उसको पढ़ के ऐसा सा भाव सा आता है कि अरे इंटेंशन में तो सब लोग सही हैं कि वो यज्ञ कर रहे हैं, विवाह पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो कंटिन्यूटी ऑफ अपने ह्यूमैनिटी एज अ रेस है, या फिर धर्म के लिए कर रहे हैं। लेकिन धर्म का मीनिंग क्या है, ये बात उस आर्टिकल में नहीं आई है। तो ये कॉन्टेक्स्ट कैसे पता चले? और मैंने अपने आप को देखा कि कहीं फिर ये इट्स वेरी क्विक टू कम टू अ कंक्लूजन कि बात तो सब वही चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसको क्लियर नहीं किया तो सब लोग इधर उधर के रास्ते में चले गए हैं। नाउ व्हेन वी आर राइटिंग समथिंग, देन आई एम वंडरिंग हाउ डू वी गो अबाउट इट। मतलब क्या उसको उसकी तरह ही, जैसे अभी भैया ने बोला कि जिसको हम पढ़ रहे हैं उसकी जो अहमियत है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उस टाइम का जो नीड था, उसको ध्यान में रखते हुए करें। बट फॉर दैट काफ़ी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। वो थोड़े से आर्टिकल पढ़ के नहीं आएगा वो वाला, ऐसा मुझे लगता है। या ऐसा हो सकता है कि वो मेरी लिमिटेशन है, बाकी सबको आ जाए, तो आई वुड लाइक टू बी हैंड हेल्ड देयर अ बिट। मुझे लगता है कि हम इतना ही मेंशन कर पाएंगे कि इस चीज के बारे में यहाँ इतना लिखा है, बाकी क्या पहुंचा और उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस
जो हुए उस पर हम बहुत कुछ नहीं लिख पाएंगे। हाँ, प्रेजेंट सोसाइटी में क्या देख पा रहे हैं हम्म उसको तो हम रख ही सकते हैं प्रॉब्लम पार्ट में, है ना, हम्म और सॉल्यूशन के रूप में इसको रख सकते हैं, ऐसा मेरा ध्यान जा रहा है। बाकी वो बहुत डेप्थ में जाके उसका उस समय क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्या रिलेशन था, क्या उस समय फैमिलीज में ऐसा हो पाया था, ये सब चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। हम्म ठीक है। ठीक है, आई रेणु थिंक लेट्स दीदी से मैं अटेम्प्ट। जानना चाहूंगा, आज जो आपने उसे पूरा पढ़ा, यदि उसका सार कुछ बता दें कि उसमें कहाँ से क्या क्या लिखा गया था विवाह को नहीं, लेकर। पूरा तो मैंने नहीं पढ़ा, मैंने पहला सेक्शन फर्स्ट डॉक्यूमेंट पढ़ा। उसमें मुझे ये समझ में आया कि विवाह का मेन अर्थ दो तीन तरह से देख रहे हैं। एक तो पुत्र प्राप्ति के लिए, एक स्वर्ग के लिए, और एक धर्म के लिए। ये तीन चीजें मेन थी। तो मेरा इमीडिएटली जो अभी वेस्टर्न पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि अरे पुत्र प्राप्ति क्यों, बिना स्त्री के तो हो ही नहीं सकता, दोनों की बात क्यों नहीं हो रही। तो ये थोड़ा सा गड़बड़, क्योंकि हम खुद भी इतने गड़बड़ करके जी रहे हैं, वेस्टर्न में इंडियन मिक्स हुआ हुआ है, और हम लोग इतने कंडीशन हैं और भी। तो मुझे लगा कि इसको एकदम ऑब्जेक्टिवली कैसे पढ़ा जाए, वॉज माई क्वेश्चन। क्योंकि फिर उसमें लिखा है कि धर्म के लिए कर रहे हैं, लेकिन धर्म की परिभाषा नहीं दी है। फिर स्वर्ग की बात कर रहे हैं तो स्वर्ग सोचते हैं, तो फिर सुखी होने के लिए कर रहे हैं, है ना। फिर तो वो, लेकिन उसके मीनिंग उन्होंने क्या डिफाइन किए थे ये उस आर्टिकल में तो नहीं आया है। बट इससे अब क्या कंक्लूड करो आप, देयर इज मोर टू इट। ये मुझे काफी नहीं लगा। पुत्र शब्द से मेल चाइल्ड का जो हमारा परसेप्शन बना हुआ है, पूरे को पढ़ने से ऐसा लगता है कि ओनली दे आर लुकिंग फॉर मेल चाइल्ड। यस। तो फिर फीमेल्स का क्या होगा, और फिर सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी। और मैं ये देख रहा हूँ कि ये पुत्र शब्द को एक्चुअली बहुत से लोगों ने उसी सेंस में रखा हुआ है अपने दिमाग में। तो ये माना कि स्वर्ग का रास्ता जो है वो पुत्र के माध्यम से ही जाएगा, पुत्री के माध्यम से नहीं जाएगा। पुत्र की जगह संतान शब्द होता तो फिर भी हम चलो बात करते कि हाँ ठीक है, दोनों की बात हो रही है। नहीं, उधर रीजन दिया है कि क्योंकि पुत्री के बारे में इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो विवाह करके दूसरे घर में जाती है। तो समझ में आया, तो ये मानव के वंश की उसके लिए नहीं है, मानव एज अ स्पीशीज के लिए नहीं है। इट इज मेरा वंश बना रहे, ऐसी मान्यता लगती थी। तो वो वहां पर थोड़ी कम पड़ी। मानव के पर्सपेक्टिव से, सहअस्तित्व के पर्सपेक्टिव से नहीं देखा गया मेरा वंश कैसे बढ़ जाए। इसके पर्सपेक्टिव से पुत्र प्राप्ति की बात हुई, क्योंकि पुत्री तो किसी और के घर जाएगी। तो ये सब चीजें, बट इट्स इंटरेस्टिंग। आई विल ट्राई। फाइनली वंश जो है वो पुत्री से ही बढ़ेगा, चाहे वो अपनी हो किसी की हो, किसी न किसी की पुत्री से ही वंश बढ़ेगा। कुछ करेक्ट। तो ये कहीं दोनों न को कहीं जो, बल्कि बट दीज आर इंटरेस्टिंग पॉइंट। मे भी मुझे लग रहा है ये वाले पॉइंट्स हम अगर लिख लें तो ये प्रेजेंटेशन में आ सकते हैं एज क्वेश्चंस। वी कैन डू दैट। ठीक है, आई थिंक लेट्स टेक द फर्स्ट स्टेप एंड देखें क्या होता है अगली मीटिंग में। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है भैया सबको। हाँ, हम लोग निकलते हैं फिर। थैंक सभी यू। को नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।